So good morning to all of you. I am Abul Hassan and you are watching official YouTube channel of Design Center. As you know, our AutoCAD training is going on and today you are with me to learn some new tools of AutoCAD. Let's see what are the tools we are going to learn today. We are going to learn how to read and write and how to write and edit the text. Today's commands are related to how to write any text and editing work, how we can edit that text as well as the dimensions. So let come to the AutoCAD window. आते हैं यहाँ पर. Let's see. You can see this is a drawing and so many times we need to write something at the bottom of this drawing area. So at that condition we need to write so many details, like here we have written two plate mold type. This mold is of two plate type. Submarine gate is used in this case. 4 cavity mold is this, and pin and sleeve ejector is used to eject out the component. And material uses for the component, plastic material uses for the component is ABS, acrylonitrile butadiene styrene. Shrinkage value is also given like that. So many details you need to write here to explain the manufacturer who is going to manufacture the particular mold by seeing this drawing. तो इसको देखते हैं कि भाई कैसे हम ये लिख सकते हैं, कैसे हमको साइज इसका सेट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप डिटेल नहीं कर पा रहे हैं किसी ड्राइंग को, सिर्फ आपने बनाया है, डायमेंशनिंग दे दिया है, तो इट इज़ ऑफ वेरी लेस यूज. तो इसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं. इसके लिए हमारे पास जो आज कमांड है वो है dtext to write text, text also to write text, mtext to write multiple line text, ddedit to edit the already written text or dimensions, style to set the style of our text. Means this is the first command we need to set before writing any text. So we need to we are going to learn this command in AutoCAD. So let's see. I am going to type style. स्टाइल टाइप करेंगे सबसे पहले. स्टाइल टाइप करके एंटर करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा. सिमिलरली ऐसे ही डायलॉग बॉक्स हमने डायमेंशनिंग स्टाइल में भी किया था, डिम स्टाइल करके. इसमें ये पूछ रहा है कि भाई ऑलरेडी वी हैविंग स्टैंडर्ड हियर सेट, बट इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन, क्लिक न्यू एंड राइट माई स्टाइल 1 so that you can easily identify my style 1 is this one. Click OK. You can see here the default values are same like standard. All the things are from standard, but now you need to edit this. So let's see how we can edit. Click over here. You can select any text like MS Word. Microsoft Word में आप जैसे different fonts रहते हैं वैसे इसमें भी दिया हुआ है. तो मैं इसको ऐसा बैंक गॉथिक ये ले लेता हूँ LT. एंड यू कैन सेट द हाइट ऑल्सो फ्रॉम हियर. मतलब आपको कितना साइज़ चाहिए. अब वही थंब रूल की भाई ड्राइंग देखना होगा आपको. ड्राइंग का साइज़ जो उसके अकॉर्डिंग हाइट को 5% रेशियो रखना पड़ेगा. 5-10 जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे, जो बेटर विजिबल हो. तो मैं अभी इसको एक ट्राई करते हैं, 5 लेके देखते हैं. 5 लेके देखते हैं. विड्थ फैक्टर मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि भाई जो विड्थ और हाइट का कैरेक्टर, विड्थ फैक्टर मीन्स width of the character divided by height of the character. So if you keep 1 means width is also same, the value of height and width will be same. So let's see how we can apply these commands. So for that, first of all what I have written here style है ना. स्टाइल मैंने पहले ही टाइप किया था. स्टाइल में यहाँ आए थे, माई स्टाइल 1 बनाया था. हाइट मैंने 5 सेट किया था. इसको क्लिक करके सेट करेंट किया. ठीक है. विड्थ फैक्टर बता दिया मैंने. ऑब्लिक एंगल बता दिया. इसको एंगल पे अगर करोगे तो ये ऐसे इंक्लाइंड लिखाएगा. इसको नहीं तो आप 0 डिग्री कर दीजिए नॉर्मल, और इसको सेट करेंट करके क्लोज कर दीजिए. नाउ इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग हियर, यू कैन राइट dtext. You can use any of this command for writing dtext, text and mtext. All of this
कमांड्स आर ऑलमोस्ट सेम। तो डी टेक्स्ट जैसे टाइप किया, एंटर किया, ये यहाँ बोल रहा है कि भाई करंट स्टाइल जो सेट है यहाँ, यू शुड हैविंग द हैबिट टू रीड हियर, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस बिफोर स्टार्ट डूइंग वर्क, रीड व्हाट इज करंटली सेट इन अवर स्टाइल। सो माई स्टाइल 1 सेट है, टेक्स्ट हाइट जिसका 5 है, एनोटेटिव नहीं है। एनोटेटिव क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। जस्टिफाई लेफ्ट है, मतलब जहाँ क्लिक करोगे लेफ्ट से लिखाना स्टार्ट होगा, राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो माई स्टाइल 1 ही चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इस एस टाइप करके एंटर करके यू कैन सेट योर एनी ऑफ द स्टाइल विच यू हैव क्रिएटेड प्रीवियसली इन द स्टाइल डायलॉग बॉक्स। जो आपने पहले से बनाया हुआ है उसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, यू कैन सेट द नेम। सो अभी ये बोल रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ लेफ्ट माउस। अब ये बोल रहा है भाई स्पेसिफाई रोटेशन एंगल ऑफ टेक्स्ट, रोटेशन एंगल 0 डिग्री दिया है तो मतलब वर्टिकल लिखाएगा तो 0 डिग्री, इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये लिखना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसमें लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट डायमेंशन टेक्स्ट, एनीथिंग यू कैन राइट हियर, आई एम गोइंग टू टाइप डायमेंशन टेक्स्ट, एंटर, AutoCAD commands like that, CAD training, anything you can write and that will be in the same font which you have set in the my style 1. Now if you want to come out from this, click escape। जैसे आपने escape क्लिक किया बाहर आ जाओगे। अब इसको आपको कहीं लेके जाना है तो you can enter जितने बार किया उतने बार इसने अलग अलग बनाया है हर लाइन को, तो इसको क्लिक करके यू कैन प्लेस एनीवेयर लाइक दिस। इसको भी क्लिक करोगे तो ये एक मूविंग हैंडल आएगा, इसको क्लिक करके आप कहीं पर भी इसको ऐसा ऐसा ले जाके जमा सकते हैं, सजा सकते हैं। तो दिस इन दिस वे यू कैन राइट एनीथिंग। ये दे हैव ऑल्सो मीन्स ये जो लिखा हुआ ये भी पहले से वैसे ही लिखा है, मगर ये मल्टीपल लाइन टेक्स्ट है। इसमें देखिए जब क्लिक करो तो अलग अलग लाइन नहीं आ रही है ना, ये पूरी एक ऑब्जेक्ट ले रहा है। अगर आप इसको क्लिक करोगे ऐसा तो ये ऐसा मूव होगा, इधर एक साथ काम कर रहा है, मगर ये क्या अलग अलग जा रहा है। ये टेक्स्ट और डी टेक्स्ट जब यूज़ करोगे कमांड तो ये ऐसा अलग अलग लाइन में बनाया गया है। जैसे ये दोनों कमांड में यही करता है। जबकि एम टेक्स्ट हम देखते हैं भाई, एम टेक्स्ट टाइप करके देखते हैं एम टेक्स्ट। अब ये बोल रहा है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बताओ, मतलब ये रेक्टेंगल जैसे एक शेप बनाने को बोल रहा है पहले, इमेजिनरी है, ठीक है। तो मैं समझ लीजिए यहाँ लिखना है तो यहाँ क्लिक करूँगा एक कॉर्नर, यहाँ पर एक कॉर्नर क्लिक करूँगा इस कॉर्नर में। अब लिख सकते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग हियर। अब मैं लिखने जा रहा हूँ कि इंजेक्शन मोल्ड, मल्टी कैविटी मोल्ड, like 4 cavities, submarine gate, anything you can write here like this. Now if you want to come out you can see एम टेक्स्ट जब मैंने टाइप किया है तो देखिए यहाँ बढ़िया से यहाँ ऊपर में एक डायलॉग बॉक्स आया है, इसमें बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ है। मतलब इंडिविजुअली आप किसी टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो। आपको माई स्टाइल वाला नहीं चाहिए सबमरीन गेट या ये वाली लाइन में, तो उसको सेलेक्ट करके यू कैन सेट योर ओन स्टाइल एनीथिंग। सो इंडिविजुअली भी आप यहाँ से एम टेक्स्ट में ये फ़ायदा है कि आप अलग अलग लाइन्स में अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ भाई टाइम्स लाइक दैट, है ना, टाइम्स न्यू रोमन, तो इसको सेट कर दीजिए। इसकी फॉन्ट बढ़ाना चाहता हूँ तो इसको 10 कर दीजिए लाइक दैट। यू कैन सेट, मतलब एक ही बार में आपके बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट के टाइप्स के, साइजेस के, कलर्स के सब काम इसमें हो जाते हैं। देखिए इसमें कलर वलर भी दिया हुआ है, इसको क्लिक करिए। देन यहाँ पर अगर आप आएंगे जस्टिफिकेशन है, ये जैसे वर्ड में रहता है लेफ्ट में रखना है, मिड में रखना है, ऐसा करके आप इसको क्लिक करोगे तो इसका पोजीशन जो है चेंज होगा, ऐसे उसी बॉक्स में पोजीशन चेंज होगा। नाउ यू वांट टू, इफ़ यू वांट टू पुट सम सिंबल हियर, तो यहाँ सिंबल में जाओगे, ये वही वाली चीज़ है जैसे डायमेंशनिंग में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि भाई अगर हम यहाँ पर सिंबल्स ये परसेंट डी टाइप करेंगे डिग्री हो जाएगा। अगर इसके अंदर जाएंगे तो और सारे बहुत सारे सिंबल जो मिलते थे, सेम एज इट इज़, ऑल द थिंग्स आर सेम, सो मेनी ऑप्शंस आर हियर। जैसे ये सारे कमांड्स आपको इसमें से कोई भी चाहिए तो उसको आपको सेलेक्ट करना है, सिंबल को यहाँ सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है, यहाँ क्लिक करके इसको पेस्ट करना है। इसको आप ऐसे सेलेक्ट करके इसको भी आप
यू कैन चेंज द साइज ऑफ दिस लाइक दिस। इस तरह से आप लेके आ सकते हैं। अब हो गया तो इसको क्लोज एडिटर करने का, बाहर आ जाओगे। नाउ इफ़ यू वांट टू एडिट दिस, बहुत इजी है। इसको डबल क्लिक करिएगा एक बार लेफ्ट माउस से, तुरंत एडिटिंग के लिए आपको अलाउ कर देगा। अब यू कैन एडिट अगेन, यू कैन राइट अगेन एनीथिंग। तो इन दिस वे देखिए फॉन्ट पुराना वाला पकड़ा हुआ है ना, क्योंकि लास्ट फॉन्ट जो था वो ये वाला था, सिंबॉलिक था, इसलिए वही ले रहा है। तो इफ़ यू वांट टू चेंज तो आपको यहाँ अगर आके इसको चेंज करके सिंबल लिया हुआ है, यहाँ आपको जो भी फॉन्ट चाहिए उसको चेंज करना चाहिए तो वो आएगा। ठीक है, इन दिस वे यू कैन डू। नाउ लेट कम हाउ टू एडिट द डायमेंशन इटसेल्फ, है ना। अब जैसे ये तो ठीक है भाई, इसको डबल क्लिक कर करके तो हम कर ले रहे हैं, ठीक है, बट डायमेंशन आमतौर पर चेंज नहीं होते हैं। इसको डबल क्लिक करोगे तो वो चेंज होने के लिए अभी जो है आपको अलाउ कर रहा है, क्योंकि लिए सारे नए जो सॉफ्टवेयर्स आ गए, नए वर्जन्स आ गए हैं ऑटोकैड के, उसमें ये लोग अलाउ करते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग। बट प्रीवियसली जब ये पुराना था तो इसमें ऐसा ऑप्शंस नहीं था। इस तो इन दैट केस व्हाट वी यूज टू एडिट डी एडिट। डी एडिट इज नॉट ओनली यूज टू एडिट dimension text but also table text like that, means you can edit so many things by using this. So I am going to type dd edit टाइप करके इसको एक बार क्लिक करोगे तो ये एडिट करने के लिए अलाउ कर देगा। नाउ यू कैन राइट एनीथिंग, कॉर्नर फिलेट लाइक दैट, क्लिक आउटसाइड लेफ्ट माउस और अगेन इट इज आस्किंग टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बिकॉज वी आर स्टिल इन दैट डी एडिट कमांड। तो अब इसको जैसे जैसे सेलेक्ट करते जाओगे इट विल अलाउ यू टू एडिट द वैल्यू लाइक दिस। इफ यू कम आउट फ्रॉम द एडिटर, यहाँ ब्लैंक में ब्लैंक में लेफ्ट माउस क्लिक करो या क्लोज एडिटर क्लिक करो, उससे बाहर आ जाओगे बट स्टिल यू आर इन द टूल। तो अब अगर टूल को छोड़ना है तो एस्केप बटन। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू। So gentlemen, I hope you are liking Design Center tutorial. So to get latest updates and fresh tutorials, click on subscribe button and bell icon.